السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اقبال اور شہباز کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ان کی زندگی کا انوکھا ترین تجربہ تھا، اور اس وقت اقبال کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی جب اس نے اس انسانی جسم میں سانسوں کی جنبش دیکھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سینے میں تحریک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پراسرار عورت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جس سے اس کی شخصیت پر کچھ اور روشنی پڑتی۔ ڈاکٹر حارث بھی پوری طرح اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اقبال نے انہیں بتایا تھا کہ شہباز کے والد بہت ہی سادہ لوح انسان ہیں، لیکن وہ بے چین ہوں گے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سر، آپ اس سلسلے میں کوئی ہدایت دیجیے۔ دیکھو اقبال، میرے لیے یہ طبی سائنس کا ایک عجوبہ ہے۔ جو کچھ تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے اسے سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تھوڑے دن پہلے ہی کی بات ہے، ہمارے وطن میں خوفناک زلزلہ آیا تھا، اور زلزلے میں بے شمار شدید جانی نقصان ہوا تھا۔ ایک بی بی 2 مہینے تک ملبے تلے دبی رہی۔ جب 2 مہینے بعد ملبہ اٹھایا گیا تو اس میں زندگی موجود تھی۔ بے شک اس کے اندر لاتعداد تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، لیکن تم خود سوچو، 2 مہینے تک بھوکا پیاسا رہ کر زندہ نکل آنا ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم کمزور ذہن کے لوگ ہیں، جدید سائنس سے زیادہ متاثر ہیں۔ میں ابھی تک وہ توجہ تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں جس کے تحت قبر میں ماں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی بھی زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہے، یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے کوئی چیز موجود ہو تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس مسئلے کو یوں ہی رہنے دیا جائے۔ فرض کرو ہم شہباز کے والد کو اس بات کی اطلاع دے بھی دیتے ہیں کہ وہ عورت زندہ ہے، تو ان بیچاروں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے قبر خالی رکھی بھی ہوئی ہے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بے شمار قبرستانوں میں لوگ اپنے لیے زمین مخصوص کرا لیتے ہیں اور ان کی قبریں خالی پڑی رہتی ہیں۔ مجھے ابھی تجزیہ کرنے دو، اس کے بعد میں اس بچی کا بھی تجزیہ کروں گا، پھر ذرا یہ بی بی ہوش میں آ جائے۔ اس کے ذہن کے خلیوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ظاہر ہے پورے جسم کو آکسیجن نہیں ملی، اسی طرح دماغ کے خلیے بھی آکسیجن سے محروم رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جو نہ ہوتا کم تھا۔ میں طبی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی زندگی قائم رہنے کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح اس میں کسی کو جنم دینے کی گنجائش باقی رہی۔ پھر اس کے بعد جب میں اس چیز کا انکشاف کروں گا تو تم یقین کرو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو جائے گا، اور اس بات کے بعد بھی امکانات ہیں کہ اس سے بہت سی نئی تحقیقات ہو سکیں۔ خاموشی اختیار کرو، اگر انہیں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو بحالت مجبوری انہیں یہ تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ اقبال نے یہ پوری تفصیلات شہباز کو بتائیں اور شہباز ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ رفیق در حقیقت لکڑ موڑ نہیں گیا تھا۔ 2 الگ الگ خاندان سمجھے جاتے تھے، شاہینہ بیگم کی حویلی والے اور لکڑ موڑ بنگلے والے۔ عرشیہ بیگم وہاں سے غائب ہو گئی تھیں، اور ظاہری بات ہے وہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہوں گے۔ لکڑ موڑ پر جس شخص کو اس عمارت کی نگرانی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اس کا نام حمید خان تھا، اور حمید خان کے بارے میں رفیق اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اگر اس نے رفیق کو وہاں دیکھا تو شبہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاہینہ بیگم کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اپنے ذرائع سے کام لے کر اس نے یہ بات معلوم کر لی کہ چودھری شاہ نواز واپس آ گئے ہیں اور لکڑ موڑ کے بنگلے میں قیامت برپا ہے۔ بس انہی خبروں کو نمک مرچ لگا کر وہ شاہینہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ شاہینہ بیگم بھی بے چینی سے اس کی منتظر تھیں۔ رفیق کو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور وہ دوہری مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف شاہینہ بیگم تھی تو دوسری طرف راج گندل جو دھمکیاں دے کر گیا تھا۔ اس کی دھمکیوں سے رفیق بہت پریشان تھا۔ شاہینہ بیگم نے بے چینی سے اسے دیکھا اور بولی، ہاں کیا خبر لائے ہو رفیق؟ بیگم صاحبہ، چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں۔ عرشیہ بیگم مسلسل لاپتہ ہیں، اور ظاہری بات ہے انہیں لاپتہ ہونا ہی چاہیے۔ ان کی قبر کا تو کوئی پتہ نہیں چلا سکتا سوائے میرے، مگر چودھری صاحب نے بڑا واویلا مچایا ہوا ہے۔ حمید خان بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے راج گندل نے اپنا قول نبھایا؟ ہاں جی، پر کچھ مشکلیں درپیش ہیں، میں انہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ شاہینہ بیگم نے خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ پر توجہ بھی نہیں دی اور بولی، گندل مہاراج کو کچھ رقم پہنچانی ہے، کب جاؤ گے ان کے پاس؟ بس جی بہت جلد جانا ہے، ذرا کچھ کام کر لوں، اب اجازت دیجیے۔ رفیق شاہینہ بیگم کو مطمئن کر کے نکل آیا، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے اس نے سخاوت خان سے کہا، سخاوت خان تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو مانگو گے دلوا دوں گا شاہینہ بیگم سے، مگر سخاوت خان تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا، تم لوگوں کو میرا کام کرنا ہوگا۔ یہ سمجھ لو کہ میری جان خطرے میں ہے اور تمہاری بھی۔ یہ مت سمجھنا کہ اکیلا میں پھنس جاؤں گا۔ میں تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں،
जब मेरी गर्दन फंसेगी तो मैं राजगंधर से कह दूंगा कि महाराज गलती मेरी नहीं उन चारों की भी है। अरे रफीक भाई क्यों डराते हो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जितना परेशान हूँ तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। चौधरी साहब वापस आ गए हैं और सुराग लगाए फिर रहे हैं। कहीं इन्हें भनक भी पड़ गई कि हम लोग इस मामले में मुलव्वस हैं तो समझ लो कि फिर क़यामत आ जाएगी। छोड़ो रफीक भाई, दलदल में फंसा दिया है तुमने, अब करना क्या है? मैंने एक मंसूबा बनाया है, उस पर अमल किए बगैर भी चारा नहीं है। देखो ये बात तो तय है कि रात की तारीकी में हम कब्रिस्तान में अपना काम नहीं कर सकते। जो कुछ हो चुका है वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं रूहों की तरफ से वो दिन में नहीं होती। मगरिब के बाद सुना है रूहों को आज़ादी मिल जाती है और वो भटकती रहती हैं। रोशनी होने से पहले वो वापस ली जाती हैं। हम दोपहर में अपना काम करेंगे। काम क्या करेंगे? तुम में से एक मिठाई का डब्बा लेकर कब्रिस्तान के गोरकुन के घर जाएगा। सामने बंगले फैले हुए हैं। वो कह देगा कि वो पिछले वाले बंगले से आया है मिठाई लेकर। इस मिठाई में बेहोशी की दवा मिली होगी। ये मिठाई वहाँ पहुँचा देना। उन बेचारों के लिए मिठाई वगैरह बहुत हैसियत रखती है। खुशी से खा लेंगे और बेहोश हो जाएंगे। हम अपने साथ गद्दाल फावड़ा लेकर जाएंगे और कब्र खोद कर वो लाश निकाल लेंगे। गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही खड़ी करना, वहाँ से हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है उस्ताद रफीक, मगर एक बात सुन लो, काम शुरू करने से पहले तुम्हें हम सबको 10-10 हज़ार रुपए देना होंगे। हाँ भैया जानता हूँ, यही तो मौका है तुम्हारे लिए रफीक की घटाई करने का। बेगम साहिबा से बात करके दूंगा तुम्हें काम होने से पहले रफीक भाई। ठीक है रफीक ने कहा। फिर वो शाहिना बेगम के पास पहुंचा और उन्हें कहानियां सुनाकर 50,000 रुपए की रकम ले ली। शाहिना बेगम दीवानी हो रही थी। बहुत सी आस उम्मीदें बांधी रखी थी उन्होंने। सोच रही थी कि अर्शिया तो जहन्नम रसीद होगी, बच्चे का मसला भी खत्म हो गया। बस एक बार चौधरी शाहनवाज यहाँ आ जाए, ऐसा मक्खन लगाऊंगी कि भीगी बिल्ली बन जाएंगे। हर तरह से कोशिश करूंगी कि मेरा सुहाग बहाल हो जाए। बाहर रफीक ने अपना काम शुरू कर दिया और सखावत खां का एक आदमी मिठाई लेकर गोरकुन की झोंपड़ी पहुंच गया। उस वक्त गुलाब खां मौजूद नहीं था, वो किसी काम से बाहर निकला हुआ था। सखावत खां के आदमी ने अंदर दाखिल होकर आवाज़ लगाई तो जीना बाहर आई। सलाम माई, ये मिठाई का डब्बा बंगला नंबर 16 वालों ने भेजा है। उनके यहाँ पोता हुआ है, पोते की खुशी में उन्होंने मिठाई बनवाई है, ये आपका हिस्सा है। बंगला नंबर 16? मेरी तरफ से मुबारकबाद कह देना, जीना ने खुश दिली से कहा और डब्बा लेकर अंदर चली गई। सखावत खां का आदमी वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गुलाब खां को भी अंदर जाते हुए देखा। रफीक ने वहीं डेरा डाल दिया था। 1 घंटे के बाद उसने उस आदमी को वहां दोबारा भेजा और गुलाब खां के दरवाजे पर जाकर उसने आवाजें लगाई। बहुत देर तक वो चीखता रहा लेकिन कोई बाहर ना निकला तो वो मुस्कुराता हुआ आ गया और उसने रफीक को आके इत्तला दी कि काम हो गया है। रफीक उठ खड़ा हुआ। वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गए और उन्होंने तेजी से काम शुरू कर दिया। कब्र खुली और जब उन्होंने स्लैबें हटाई तो अंदर निकाह डालते ही रफीक के हलक से जोरदार आवाज निकल गई और उसके साथी खौफजदा होकर कई कदम पीछे हट गए। क्या हुआ उस्ताद? सखावत खान ने घबराए हुए लहजे में पूछा। गायब, रफीक घुटी घुटी आवाज में बोला। कौन? दोनों गायब, ना औरत है ना उसकी औलाद। कब्र में कुछ नहीं है। वापस चलो रफीक भाई, खुदा के लिए वापस चलो। एक तो तुम लोगों ने नाक में दम कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों में से किसी को मरना ही नहीं है। इतनी जल्दी भी नहीं मरना रफीक भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता इन आसेबी चक्रों से निकल आओ। आओ कब्र ठीक करो, रफीक ने कहा। बाहर में डालो कब्र को, गोरकुन ठीक कर लेगा। यार रफीक भाई, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। काम तो हम तुम्हारे लिए बहुत से करते रहे हैं मगर तुम जिन धंधों में पड़ गए हो, कसम अल्लाह की ठीक नहीं है। कोई बड़ा नुकसान उठा जाओगे। रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापसी के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में रफीक ने कहा, कहते तो तुम लोग ठीक ही हो, मगर अब एक बात बताओ, राजगंदर को हमने अपने पीछे लगा लिया है। राजगंदर के लिए क्या किया जाए? तुम जानते हो वो सिफली अलूम का माहिर है और हमारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। हम तो खुद परेशान हैं रफीक भाई। बस एक बात तुमसे कह देता हूँ दोस्तों, मुझे छोड़कर भाग ना जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सिर्फ तुम लोग ही मेरे राजदार हो। दिल की हर बात तुमसे कह सकता हूँ क्योंकि तुम तमाम सूरत-ए-हाल से वाकिफ हो। जब तक कोई हल ना निकल आए तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। हम लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है रफीक भाई, अब भी नहीं भागेंगे, वादा है, सखावत ने कहा। रफीक पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, तुम लोग आराम करो, मैं ज़रा शाहिना बेगम के पास हो आऊँ, मुलाजिम हूँ उनका, ज़्यादा देर उनके पास से गायब नहीं रह सकता।
रफीक अपने साथियों से रुखसत होकर हवेली की जानिब चल पड़ा। शाहिना ने फिर ख्वाब देखा था। अब तो इन ख्वाबों की कैफियत ऐसी हो गई थी कि रात दिन की कोई तखसीस नहीं रही थी। बस बैठे बैठे आंखों में ख्वाब आ बसते थे। कभी कभी तो ये ख्वाब बहुत भयानक होते थे और इनके खात्मे के बाद शाहिना बेगम शदीद वहशत का शिकार हो जाती थी। इस वक्त भी वो ख्वाब देख रही थी। उसके सामने दरिया बह रहा था और वो देख रही थी कि उस दरिया में इंसानी जिस्म बह रहे हैं, चीखते चिल्लाते, पानी में गोता खाते। उनके हाथ मदद के लिए पानी से बाहर निकलते और फिर वो डूब जाते। वो चीख भी रहे थे लेकिन शाहिना को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसे अपने अकब में एक आहट सी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो उससे चंद गज के फासले पर एक मगरमच्छ बहुत बड़ा मुंह खोले छिपकली जैसे पैरों के साथ चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। शाहिना के हलक से चीख निकल गई और इस चीख से ही उसकी आंख खुल गई। दोपहर का वक्त था। सूरज ढलान की तरफ उतर चुका था। वो खाना खाने के बाद आराम करने के लिए लेटी थी और चंद लम्हों के बाद नींद की आगोश में पहुंच गई थी। इस नींद के आलम में ही उसने ये ख्वाब देखा था। ऐसा खौफनाक ख्वाब था कि उसके पूरे बदन के मसामात पसीना उगल रहे थे। वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई और एक बार फिर उसके ज़हन को एक शदीद झटका लगा और उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल गई। थोड़े ही फासले पर साधु राजगंदल खामोश बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसकी सर्द आंखों में अजीब सी कैफियत थी, बिल्कुल वीरानी नजर आ रही थी। शाहिना ने अपने आप को यकीन दिलाने के लिए जोर जोर से आंखें मली और साधु को देखने लगी। मुसीबत में डाल दिया है तूने हमें, बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तेरा सत्यानाश, अपनी मुश्किल तो हल कर ली तूने और हम पड़ गए मुसीबत में। जोगी महाराज, गुरुजी, चूल्हे में गए जोगी महाराज और भाड़ में गए गुरुजी। क्या मुसीबत पड़ गई है हमारे सर। अब क्या बताएं तुझे, छोटा सा तो दिमाग है तेरा। तू अगर ये समझती है पागल औरत कि हमने थोड़ी सी दौलत के लिए तेरा काम किया है तो ये गलत है। दौलत तो हमारे पैरों के नीचे है, काली माई के दास हैं हम। दौलत की हमारे लिए कोई कमी नहीं होती, पर एक मुसलमान लड़की या लड़का हमें ऐसा चाहिए था जिसकी बलि देकर हम महाशक्ति हासिल कर लें। काले जादू के कुछ असूल होते हैं, कुछ सीढ़ियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी। जो पांचवी सीढ़ी तक पहुंच जाता है वो महाशक्तिमान होता है और काले संसार में देवताओं की तरह समझा जाता है। उसके लिए हमें कुछ काम करने थे, खास तौर से वो बच्चा जो मुसलमान होता और संसार को ना देखता। ऐसे किसी पोतर खून को शैतान की भीड़ देखकर हम महाशक्तिमान बन सकते थे और इसके लिए हमने जो कदम उठाया था वो पहला और आखिरी कदम था। माँ साबली बस एक बार मौका देते हैं। हमें वो बच्चा चाहिए जो उस माँ की आगोश में जन्म ले, जो संसार की निगाहों से दूर हो। सारा बंदोबस्त कर लिया था हमने, पर अभी जोगी ये बातें कर ही रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई। फिर रफीक की आवाज़ सुनाई दी, बेगम जी, मैं अंदर आ सकता हूँ। शाहिना ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो पीछे से राजगंदल बोल पड़ा, आ जाओ निकम्मे, आ जाओ, सारे काम खराब करने में तेरा बड़ा हाथ है। रफीक हैरान हैरान सा अंदर दाखिल हुआ था। आप जोगी महाराज? हाँ, हम। कुछ हुआ या नहीं? दिन रात कोशिशों में लगा हुआ हूँ साधु महाराज, मुझसे कसम ले लें, एक लम्हे को सुकून नहीं मिला है। अभी कब्रिस्तान से ही आ रहा हूँ। बड़ी कोशिशें की हैं मैंने। रात में तो वहाँ रूहों का बसेरा होता है। मैंने सोचा कि दिन की रोशनी में ज़रा वहाँ जाकर जायज़ा लूँ। जायज़ा लेने के बाद आज मैंने एक और कार्रवाई की। कब्रिस्तान के गोरकुनों को धोखे से निशा आवर मिठाई खिलाई और उसके बाद वो कब्र खोदी। तो फिर क्या हुआ? राजगंदल मुतजस्सिस अंदाज में उठ खड़ा हुआ। दूसरी हैरत अंगेज बात हुई महाराज। पहले जब मेरे आदमियों ने कब्र खोली थी तो कब्र में अर्शिया बेगम और इसके बराबर एक नौज़ायदा बच्ची भी मौजूद थी, मगर हम इसी वक्त रोशनी की जद में आ गए थे और कब्र इसी तरह खुली छोड़कर भाग आए थे। बाद में हमें उस कब्र के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ। बहरहाल गोरकुन ने वो कब्र बराबर कर दी थी। आज फिर उसे खोलकर देखा तो कब्र खाली थी, इसमें कोई नहीं था। ना अर्शिया बेगम थी और ना ही बच्ची। रफीक, खुदा तुझे गारत करे, कभी कोई अच्छी खबर भी सुनाएगा? शाहिना बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। आप जो भी कह ले बेगम साहिबा, मैंने तो नमक का हक अदा करने की पूरी कोशिश की, मगर क्या करूं, तकदीर ने साथ नहीं दिया। राजगंदल भी सोच में डूबा हुआ था। अचानक ही उसने गर्दन उठाई और बोला, सुन, तूने गोरकुन को बेहोश कर दिया था? हाँ जोगी महाराज।